The concept of limited liability partnership was introduced in India in 2008. All right, let's dive right in. Today, we are decoding one of the smartest, most popular business structures in India, the Limited Liability Partnership, or LLP. Now, if you're an entrepreneur, figuring this stuff out is absolutely crucial, so let's get to it. So, you've got this incredible business idea. You're ready to go, and then you hit your first major roadblock. Which legal path do you take? Believe me, this isn't just paperwork. This one decision impacts your risk, your taxes, and pretty much your entire day-to-day life. For the longest time, the choice felt, well, kind of terrible. You could pick a traditional partnership, sure, but that means if the business goes under, your personal assets, we're talking your house, your car, are on the line. Or you could go the other way, form a private company and protect your assets, but then you're buried under a mountain of regulations and compliance. It felt like a lose-lose. But what if there was a third way? A way to protect your personal life without sacrificing all your time and sanity to paperwork? Well, that's exactly why the Limited Liability Partnership was created. Back in 2008, the LLP Act basically created a best of both worlds option. Seriously, think of it like this. It takes the liability protection, that shield, from a company and combines it with the flexibility and ease of a partnership. It was built from the ground up to be that perfect middle ground. So how does it actually pull this off? Let's get under the hood and look at the anatomy of an LLP and see what makes it so appealing for so many businesses today. Okay, I know this sounds like legal jargon, but hang with me. There are two phrases here that are absolute game changers: body corporate and legal entity separate from its partners. All this really means is that the law sees your LLP as its own person. It can own property, it can sign contracts, and crucially, it can get into debt, all completely separate from you. And that's where the magic happens. Because the LLP is its own separate entity, it's responsible for its own debts. It creates this legal firewall between your business finances and your personal finances. This is the limited liability part, and it is a huge deal. So you put it all together and you can see why it's so attractive. You get that legal separation and limited liability just like a big company, but you can start with basically zero capital, manage it however you want, and the business keeps on going even if a partner leaves. It's this unique combination that makes it perfect for startups, consultants, you name it. Getting one set up might sound intimidating, but it really comes down to these four main steps. First, your key partners get their digital signatures and ID numbers. Next, you pick and reserve your unique business name. Then you file the main incorporation form. It's called Philip. And the final super important step, you have 30 days to file your LLP agreement. That agreement is basically the constitution for your business. Now, all that flexibility is amazing, but it's not a complete free-for-all. To keep that limited liability shield, you've got to play by the rules. So let's talk about what it takes to stay compliant. Every single year, you've got three main things to do. You can think of it like this. Form 8 basically tells the government, yep, our finances are in order. Form 11 says, here's an updated list of who runs the show. And of course, ITR 5 is your income tax return. Simple as that. Now, why is hitting those deadlines so critical? Well, here's why. The penalty for filing late is 100 rupees per day. And here's the real kicker. That penalty is per form, and there is no upper limit, no cap. So if you're late on both Form 8 and Form 11, that's 200 rupees a day, every day, until you file. It can spiral into thousands, even lakhs, really, really fast. This is not something you want to mess with. Okay, so we know how an LLP works. We know the rules. Now for the fun part. Let's put it head-to-head against the other options. This is where you can really see the pros and cons light up. This chart tells the whole story. Look, a partnership is simple, right? No mandatory filings, but you've got that scary unlimited liability. A private company, it protects you, for sure, but the compliance is a beast. And then, smack in the middle, you have the LLP. You get the protection of a company, but with a compliance load that's way more manageable. It's the structured, balanced trade-off. All right, we've gone through the what, the how, and the why. So with all of this on the table, how in the world do you make the final call for your business? It really boils down to this. There is no single best structure. It's a myth. The only thing that matters is finding the best structure for your specific goals, your funding plans, and frankly, your tolerance for paperwork.
So here's the bottom line. The LLP is probably your go-to choice if your main priorities are protecting your personal assets and having the freedom to run your business flexibly. It's for people who want structure but don't want to get bogged down by the heavy compliance of a full-blown company. And that really leaves you with one final question to ask yourself. What do you really want? Is your number one priority asset protection? Is it being nimble and flexible? Or is your main goal to raise a ton of money from investors down the line? Be honest about that, and your answer will point you straight to the right choice. नमस्कार और स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बिजनेस करने के एक पॉपुलर तरीके की लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि LLP। हाँ, ये नाम काफी सुना है आजकल, तो हमने सोचा क्यों ना इस पर गहराई से बात की जाए। हमारे पास LLP एक्ट है, सरकारी नियम है, एक्सपर्ट्स की राय है, काफी कुछ है। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि ये LLP आखिर भला क्या है, ये नॉर्मल पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से कैसे अलग है, इसके फायदे क्या हैं, क्या रोज के झंझट है मतलब कंप्लायंस, और क्या नए बदलाव आए हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये LLP होती क्या है, कोई आसान भाषा में समझा सकता है? बिल्कुल, LLP का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये आप समझ लीजिए LLP एक्ट 2008 के तहत बनी एक लीगल बॉडी है। इसे एक तरह का हाइब्रिड कह सकते हैं। मतलब इसमें पार्टनरशिप फर्म वाला लचीलापन भी है और कंपनी वाली लिमिटेड लायबिलिटी यानी सीमित जिम्मेदारी भी। और सबसे जरूरी बात, ये अपने पार्टनर से अलग मानी जाती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी। लिमिटेड लायबिलिटी ये शब्द बार बार आता है, इसका ठीक मतलब क्या है पार्टनर्स के लिए? मान लीजिए मैं एक पार्टनर हूं, तो मेरे लिए इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। इसका मतलब ये है कि अगर भगवान ना करे LLP पर कोई कर्ज आ जाता है या कोई लीगल केस हो जाता है, तो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके सेविंग्स, वो आमतौर पर सेफ रहती हैं। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ उतनी ही बनती है जितना पैसा या एसेट आपने LLP में लगाया है, मतलब आपका कॉन्ट्रीब्यूशन। ये नॉर्मल पार्टनरशिप से बहुत अलग है। अच्छा, हाँ, नॉर्मल पार्टनरशिप में तो सब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है ना? मतलब घर बार भी बिक सकता है। बिल्कुल सही, वहाँ पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। LLP आपको उस जोखिम से बचाती है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। और इसके अलावा और क्या खास फीचर्स हैं LLP के? और भी है, जैसे LLP की अपनी एक अलग कानूनी पहचान है। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस कर सकती है, उस पर केस हो सकता है। फिर इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब ये कि पार्टनर्स आते जाते रहें, किसी की डेथ हो जाए, LLP बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। और हाँ, ये सिर्फ प्रॉफिट कमाने वाले बिजनेस के लिए बन सकती है, चैरिटी वगैरह के लिए नहीं। और इसका सारा कामकाज पार्टनर्स के बीच एक अग्रीमेंट से चलता है, जिसे LLP अग्रीमेंट कहते हैं। आपने नॉर्मल या ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का जिक्र किया, तो LLP और उसमें मोटे-मोटे क्या फर्क हुए? लायबिलिटी वाला तो समझ आ गया। हाँ, लायबिलिटी तो सबसे बड़ा फर्क है। LLP में लिमिटेड, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड। दूसरा, LLP एक अलग लीगल एंटिटी है, पार्टनरशिप फर्म नहीं। तीसरा, LLP का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है MCA के पास। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है, हालांकि करा लेना अच्छा रहता है। पार्टनर्स की संख्या का भी कुछ है क्या? हाँ, LLP में मैक्सिमम पार्टनर्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं। जबकि पार्टनरशिप फर्म में बैंकिंग बिजनेस में 10 और दूसरे बिजनेस में 20 की लिमिट होती थी। अब कंपनीज एक्ट के तहत ये लिमिट 50 तक हो सकती है, अगर सरकार नोटिफाई करे। और एक बड़ा फर्क है कंप्लायंस का। LLP को हर साल रजिस्ट्रार के पास अपने अकाउंट्स यानी फॉर्म 8 और एनुअल रिटर्न यानी फॉर्म 11 फाइल करना होता है। पार्टनरशिप फर्म के लिए ऐसी कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, विदेशी नागरिक भी LLP में पार्टनर बन सकते हैं। अच्छा, तो मतलब LLP ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर है पार्टनरशिप के मुकाबले? हाँ, कह सकते हैं। ज्यादा रेगुलेटेड है, ज्यादा कानूनी सुरक्षा देता है पार्टनर्स को। अब आते हैं उस सवाल पर जो बहुत से लोग पूछते हैं, LLP या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कहाँ फिट होती है LLP? ये एक बहुत कॉमन सवाल है। देखिए, दोनों के अपने फायदे नुकसान हैं। LLP अक्सर उन बिजनेस के लिए अच्छी रहती है जहां पार्टनर्स खुद ही काम संभाल रहे हैं और फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं, जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज, CA, वकील, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट्स वगैरह। या फिर छोटे और मीडियम लेवल के बिजनेस जहां बाहर से बहुत ज्यादा फंडिंग की जरूरत एकदम से नहीं है। इसका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर भी काफी फ्लेक्सिबल होता है, जैसा पार्टनर्स अपने अग्रीमेंट में तय करें। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वो किन के लिए बेहतर है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल हो सकती है जो बड़े स्केल पर बिजनेस फैलाना चाहते हैं, जिन्हें बाहर से इक्विटी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे वेंचर कैपिटल या एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा उठाना है, या फिर जो अपने एम्प्लॉयज को स्टॉक ऑप्शंस मतलब ESOPs देना चाहते हैं। ये चीजें LLP में मुमकिन नहीं है, क्योंकि LLP शेयर इशू नहीं कर सकती। अच्छा, ये फंडिंग वाला पॉइंट तो काफी अहम है। तो अगर किसी स्टार्टअप को VC फंडिंग चाहिए, तो उसके लिए प्राइवेट लिमिटेड ही ऑप्शन है ज्यादातर? हाँ, ज्यादातर VC और इक्विटी इन्वेस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्ट्रक्चर को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें शेयर होल्डिंग वगैरह का सिस्टम क्लियर होता है। LLP में फंडिंग या तो पार्टनर्स खुद लाते हैं या फिर लोन के जरिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं रोजमर्रा के काम की, कंप्लायंस और टैक्स। क्या LLP चलाना वाकई आसान है कंपनी के मुकाबले? तुलना करें तो हाँ,
LLP का कंप्लायंस लोड प्राइवेट लिमिटेड से कम होता है। जैसे LLP में बोर्ड मीटिंग्स करना जरूरी नहीं है जब तक आपके एग्रीमेंट में ना लिखा हो। अकाउंट्स का ऑडिट भी तभी जरूरी है जब टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो जाए या पार्टनर्स का कुल कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा हो। और कंपनी में? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में तो ऑडिट हमेशा ही कराना पड़ता है, चाहे टर्नओवर 1 रुपया ही क्यों ना हो, और बोर्ड मीटिंग्स भी रेगुलरली करनी पड़ती हैं, तो उस हिसाब से LLP में थोड़ी राहत है। और टैक्स का क्या सीन है? टैक्स में LLP पर फ्लैट 30% टैक्स लगता है, प्लस जो भी सरचार्ज और सेस लागू हो। एक अच्छी बात यह है कि LLP के प्रॉफिट पर टैक्स लगने के बाद जब वो प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर्स के हाथ में उस पर दोबारा टैक्स नहीं लगता। इसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी DDT जैसा कुछ नहीं देना होता। यानी सिंगल लेवल टैक्सेशन है? हाँ, कह सकते हैं। जबकि कंपनी में क्या होता है, पहले कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स देती है, फिर जब वो डिविडेंड बांटती है तो वो डिविडेंड शेयर होल्डर की इनकम में जोड़ता है और शेयर होल्डर को उस पर अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। हालांकि LLP पर एक चीज लगती है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स यानी AMT। ये करीब 18.5% होता है बुक प्रॉफिट पर, प्लस सरचार्ज और सेस। ये AMT क्यों? इसका क्या लॉजिक है? इसका लॉजिक ये है कि कई बार कंपनियां या LLP बहुत सारी छूट और डिडक्शंस क्लेम करके अपनी टैक्सेबल इनकम बहुत कम कर लेती हैं। तो सरकार ने AMT लगा दिया कि कम से कम इतना टैक्स तो देना ही पड़ेगा, चाहे आपकी कैलकुलेटेड टैक्स लायबिलिटी कम ही क्यों ना हो। या दूसरे बिजनेस LLP को कितना सीरियसली लेते हैं? कंपनी के बराबर? देखिए, फंडिंग का तो हमने डिस्कस किया कि इक्विटी के लिए कंपनी बेहतर है। जहां तक मार्केट परसेप्शन का सवाल है तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अक्सर ज्यादा स्टेबल और क्रेडिबल माना जाता है, खासकर बड़े कॉर्पोरेट्स या बैंकों द्वारा। लेकिन प्रोफेशनल सर्विसेज और छोटे मीडियम बिजनेस के लिए LLP की एक्सेप्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और लगातार बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि इसे कम आंका जाता है, बस कुछ खास स्थितियों में जैसे बड़ी फंडिंग या IPO प्लान्स कंपनी को शायद थोड़ी एज मिल जाती है। मतलब अगर आपका प्लान बड़ा है, ग्लोबल लेवल का है, तो शायद कंपनी बेहतर। हाँ, शायद उस केस में, लेकिन ज्यादातर डोमेस्टिक बिजनेस और प्रोफेशनल फर्म्स के लिए LLP एक बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल ऑप्शन है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे या किसी और को LLP बनानी है, क्या प्रोसेस है? क्या मिनिमम जरूरतें हैं? भी हो सकते हैं या कोई कंपनी या दूसरी LLP भी। साथ ही इन्हीं पार्टनर्स में से या अलग से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर यानी DP बनाने पड़ते हैं। ये DP सिर्फ इंडिविजुअल ही हो सकते हैं, कोई कंपनी DP नहीं बन सकती। और इन 2 DP में से कम एक भारत का रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट मतलब कितने दिन इंडिया में रहना जरूरी है? पहले ये 192 दिन था पिछले फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन 2021 में इसे कम करके 120 दिन कर दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति पिछले साल कम से कम 120 दिन भारत में रहा है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा इस पर्पस के लिए। ये डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ही सारे कानूनी कंप्लायंस के लिए जिम्मेदार होते हैं। और प्रोसेस क्या है बनाने का? क्या बहुत मुश्किल है? नहीं, अब प्रोसेस काफी ऑनलाइन और आसान हो गया है। मोटे तौर पर स्टेप्स ये हैं। 1, सबसे पहले सभी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट या DSC लेना होगा। 2, फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर या डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN लेना होता है। अब ये दोनों काफी हद तक इंटीग्रेट हो गए हैं। 3, इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी MCA के पोर्टल पर रन LLP फॉर्म भरकर अपनी पसंद का नाम रिजर्व कराना होता है। नाम यूनिक होना चाहिए और आखिर में LLP या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शब्द जुड़ा होना चाहिए। 4, नाम अप्रूव होने के बाद फिलिप नाम का एक वेब फॉर्म भरना होता है। इसी फॉर्म में सारी डिटेल्स जाती हैं, पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, रजिस्टर्ड ऑफिस, बिजनेस क्या होगा, कंट्रीब्यूशन कितना है वगैरह। इसी फॉर्म के साथ ही DP एंड DIN का अप्लाई भी हो जाता है अगर नहीं है तो। और वो LLP एग्रीमेंट का क्या? वो कब और कैसे बनता है? हाँ, वो बहुत जरूरी है। LLP रजिस्टर होने के 30 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म 3 में LLP एग्रीमेंट बनाकर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। इसी एग्रीमेंट में पार्टनर्स के आपसी राइट्स, ड्यूटीज, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग, नया पार्टनर कैसे आएगा, पुराना कैसे जाएगा, मैनेजमेंट कौन देखेगा, ये सारी बातें लिखी होती हैं। ये LLP का इंटरनल रूल बुक है। और अगर कोई एग्रीमेंट ना बनाए या फाइल ना करे तो? अगर आप 30 दिन में एग्रीमेंट फाइल नहीं करते तो LLP एक्ट का फर्स्ट शेड्यूल लागू हो जाता है, जिसमें डिफॉल्ट नियम दिए गए हैं। हो सकता है वो नियम आपकी आपसी समझ से अलग हो, इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि एक अच्छा क्लियर एग्रीमेंट बनाएं और टाइम पर फाइल करें। एक अच्छी बात आपने बताई थी कि पैन और टैन अब साथ में मिल जाते हैं। हाँ, ये एक बढ़िया सुविधा है। जब आप फिलिप फॉर्म भरते हैं उसी के साथ पैन और टैन भी अप्लाई हो जाते हैं और LLP का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आते ही ये नंबर्स भी मिल जाते हैं। अलग से अप्लाई करने का झंझट खत्म। चलो, LLP बन गई, अब इसे चलाने के लिए रेगुलरली क्या क्या करना पड़ता है? क्या कंप्लायंस है? पार्टनरशिप फर्म से ज्यादा है क्या? हाँ, पार्टनरशिप फर्म से तो ज्यादा कंप्लायंस है, लेकिन जैसा हमने कहा प्राइवेट लिमिटेड से कम। 2 चीजें तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, ये सालाना करनी होती हैं। पहला है फॉर्म 8, जिसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी कहते हैं। इसमें LLP की पूरी फाइनेंशियल पिक्चर होती है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 महीने के बाद 30 दिन के अंदर फाइल करना होता है, यानी अगर मार्च में साल खत्म हुआ तो 30 अक्टूबर तक। अच्छा, 30 अक्टूबर। और अगर टर्नओवर या कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो तो ऑडिट भी? हाँ,
अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है या सभी पार्टनर्स का मिलाकर कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है तो इन अकाउंट्स का किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट कराना भी जरूरी है फॉर्म 8 फाइल करने से पहले। दूसरी जरूरी फाइलिंग है फॉर्म 11। ये एनुअल रिटर्न है। इसमें एलएलपी के पार्टनर्स, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, उनके कंट्रीब्यूशन में साल भर में क्या बदलाव हुए, ये सब जानकारी जाती है। ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 60 दिनों के अंदर फाइल करना होता है, यानी 30 मई तक। 30 मई, ठीक है। तो 30 मई तक फॉर्म 11 और 30 अक्टूबर तक फॉर्म 8। और इनके अलावा हर एलएलपी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, जिसके लिए फॉर्म ITR 5 इस्तेमाल होता है। और अपनी अकाउंट बुक्स और रिकॉर्ड्स कम से कम 8 साल तक संभाल कर रखने होते हैं। अभी हाल में 2023 में भी कुछ नए नियम आए थे ना, हाँ। वो पार्टनर्स के रजिस्टर वगैरह के बारे में। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। 2023 के नियमों ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने पर जोर दिया है। अब हर एलएलपी को फॉर्म 4A में अपने पार्टनर्स का एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा, जिसमें उनकी पूरी डिटेल्स होंगी। और एक और बड़ी चीज आई है बेनिफिशियल इंटरेस्ट की। मतलब अगर एलएलपी में कोई पार्टनर है लेकिन उसका फायदा असल में किसी और व्यक्ति को मिल रहा है, बेनिफिशियल ओनर, तो इसकी जानकारी देनी होगी। पार्टनर को फॉर्म 4B में डिक्लेरेशन देना होगा, बेनिफिशियल ओनर को फॉर्म 4C में, और एलएलपी को ये जानकारी फॉर्म 4D में रजिस्ट्रार को देनी होगी। ओहो, तो ये तो काफी कुछ कंपनीज वाले SBO रूल जैसा लग रहा है। मतलब सरकार जानना चाहती है कि असली मालिक कौन है। बिल्कुल, मकसद वही है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में पारदर्शिता लाना और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजों को रोकना। टैक्स की बात हमने थोड़ी की थी, 30% फ्लैट टैक्स। क्या कोई खास डिडक्शन या छूट मिलती है एलएलपी को? हाँ, मिलती हैं। अगर एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा है तो एलएलपी अपने वर्किंग पार्टनर्स को जो सैलरी देती है और पार्टनर्स की कैपिटल पर जो इंटरेस्ट देती है, उसका डिडक्शन क्लेम कर सकती है इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शंस की लिमिट्स के अंदर। एलएलपी अपने बिजनेस लॉस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके आगे के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकती है। और अगर एलएलपी एक एलिजिबल स्टार्टअप है तो वो सेक्शन 80 IAC में टैक्स हॉलिडे भी क्लेम कर सकती है, यानी इनकॉर्पोरेशन के बाद पहले 10 में से किन्हीं 3 लगातार सालों के प्रॉफिट पर 100% टैक्स छूट। लेकिन वो जो छोटे बिजनेस के लिए 44AD वाली स्कीम है, वो एलएलपी के लिए नहीं है? नहीं, सेक्शन 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेस एलएलपी पर लागू नहीं होता। हाँ, अगर एलएलपी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही है तो वो सेक्शन 44ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल्स का फायदा उठा सकती है, अगर शर्तें पूरी होती हैं तो। ठीक है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, अगर कोई एलएलपी ये फॉर्म 8 या 11 टाइम पर फाइल ना करे तो? आपने कहा था जुर्माना भारी है, कितना भारी? ये बहुत सीरियस मामला है। फॉर्म 8 या फॉर्म 11 देर से फाइल करने पर सीधा 100 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना है, पर डे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इस जुर्माने की कोई मैक्सिमम लिमिट, कोई ऊपरी सीमा नहीं है। कोई लिमिट नहीं? मतलब अगर कोई 6 महीने लेट हो गया तो 100 रुपए रोज के हिसाब से करीब 18,000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा, सिर्फ एक फॉर्म के लिए। अगर दोनों लेट हैं और ज्यादा देर हो गई तो ये लाखों में जा सकता है। ये बहुत तेजी से बढ़ता है। यही 100 रुपए रोज का जुर्माना फॉर्म 3 एलएलपी एग्रीमेंट लेट फाइल करने पर भी है। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। क्या कोई रियायत है छोटी एलएलपी के लिए? हाँ, 2021 के संशोधन के बाद एक स्मॉल एलएलपी की कैटेगरी बनाई गई है। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है और टर्नओवर 40 लाख तक है तो आप स्मॉल एलएलपी कहलाएंगे। ऐसी एलएलपी के लिए कई सारे नॉन कंप्लायंस पर लगने वाले जुर्माने कम कर दिए गए हैं या उन पर कैप लगा दिया गया है। ये एक बड़ी राहत है छोटी फर्म्स के लिए। लेकिन फिर भी टाइम पर फाइलिंग करना बहुत जरूरी है। इनके अलावा भी कई जुर्माने हैं, जैसे गलत नाम इस्तेमाल करने पर या लेटरहेड पर सही जानकारी न देने पर। और अगर कोई एलएलपी लगातार 5 साल तक फॉर्म 8 या 11 फाइल नहीं करती तो रजिस्ट्रार उसका नाम रजिस्टर से काट सकता है। मतलब एलएलपी बंद भी हो सकती है। ये जानना जरूरी था। अच्छा, अगर पार्टनर्स के बीच कोई झगड़ा हो जाए या एलएलपी को बंद करना हो तो क्या होता है? झगड़ों के लिए सबसे पहले तो अपना एलएलपी एग्रीमेंट देखना चाहिए। अक्सर अच्छे एग्रीमेंट में डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का तरीका लिखा होता है, जैसे आर्बिट्रेशन यानी मध्यस्थता, तो मामला कोर्ट कचहरी से बच सकता है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है या आर्बिट्रेशन फेल हो जाता है तो फिर मामला जाता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT के पास। NCLT? हाँ, वो तो कंपनियों के मामले देखता है। हाँ, लेकिन एलएलपी से जुड़े कई मामले भी NCLT ही देखता है, जैसे पार्टनर्स या क्रेडिटर्स के बीच कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, मर्जर, इन्वेस्टिगेशन और सबसे जरूरी एलएलपी को बंद करना यानी वाइंडिंग अप। एलएलपी को बंद करने के कई कारण हो सकते हैं। अगर एलएलपी खुद तय करे, अगर पार्टनर्स 2 से कम रह जाएं, अगर वो अपने कर्ज नहीं चुका पा रही हो, अगर 5 साल तक लगातार एनुअल रिटर्न फाइल ना करे, या अगर NCLT को लगता है कि इसे बंद कर देना ही ठीक है, जस्ट एंड इक्विटेबल। 2021 के संशोधन ने इन मामलों की तेज सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने का भी प्रावधान किया है। आपने ये 2021 और 2023 के संशोधनों का कई बार जिक्र किया, एक बार फिर से इनके मेन पॉइंट्स क्या थे?
क्या बड़ा बदलाव आया इनसे? जरूर। 2021 का जो LLP अमेंडमेंट एक्ट था, उसका मेन फोकस था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। सबसे बड़ा काम हुआ डीक्रिमिनलाइजेशन, मतलब कई छोटे मोटे टेक्निकल या प्रोसीजरल ऑफेंस जहां पहले जेल की सजा भी हो सकती थी, उन्हें अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया। अब उन पर सिर्फ मॉनेटरी पेनल्टी यानी जुर्माना लगेगा। इससे डर का माहौल कम हुआ। दूसरा, स्मॉल LLP की कैटेगरी बनाई गई ताकि छोटी फर्म्स पर कंप्लायंस और पेनल्टी का बोझ कम हो। तीसरा, रेजिडेंट डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए भारत में रहने की मिनिमम अवधि 182 दिन से घटाकर 120 दिन कर दी गई। चौथा, मामलों के तेज निपटारे के लिए स्पेशल कोर्ट्स और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर्स का प्रोविजन आया। और फिर 2023 के नियमों ने ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया, पार्टनर्स का रजिस्टर और बेनिफिशियल इंटरेस्ट का डिस्क्लोजर अनिवार्य करके। तो मतलब सरकार एक तरफ इसे आसान बना रही है, दूसरी तरफ और पारदर्शी भी। हाँ, ये कोशिश लग रही है बिजनेस करना आसान हो, लेकिन साथ ही गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो और पता रहे कि कौन क्या कर रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो LLP वाकई भारत में बिजनेस के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग और फायदेमंद स्ट्रक्चर है। इसमें पार्टनरशिप वाली फ्लेक्सिबिलिटी और कंपनी वाली सेफ्टी दोनों का अच्छा मिक्सचर है। खासकर सर्विस सेक्टर, प्रोफेशनल्स और SME सेगमेंट के लिए तो ये काफी फिट बैठता है। बिल्कुल सहमत हूँ। ये एक अच्छा मॉडर्न स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका पूरा फायदा तभी मिलेगा जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मतलब शुरुआत में LLP अग्रीमेंट सोच समझकर बनाना और फिर जो सालाना कंप्लायंस हैं जैसे फॉर्म 8, फॉर्म 11, ITR, उन्हें टाइम पर पूरा करना। वो 100 रुपए रोज वाला जुर्माना मजाक नहीं है। सही कहा। सही स्ट्रक्चर चुनना और फिर उसके रूल्स फॉलो करना, यही किसी भी बिजनेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए जरूरी है। और चलिए जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तरह से LLP धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है और सरकार भी इसे आसान और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रही है, क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में LLP इंडिया में नए स्टार्टअप्स और प्रोफेशनल फर्म्स के लिए एक डिफॉल्ट चॉइस बन सकती है? और ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का दबदबा है, उसे कितनी टक्कर दे पाएगी, खासकर तब जब बड़ी फंडिंग या ग्लोबल पहचान जैसी बातें आती हैं, जहां शायद अभी भी कंपनी का पल्ला थोड़ा भारी लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर। इस बेहतरीन चर्चा के लिए और LLP की इतनी सारी जानकारी इतने आसान तरीके से देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।